Good morning, students. Take up your university sum number 7, which deals with one of the theoretical concepts which was taught by me. Theoretical concept पर ये एक sum है. फटाफट पेज पैम्पलेट का जो भी है फटाफट खोल के सम नंबर 7 पर चले जाएंगे. एवरीबॉडी गो ऑन टू सम नंबर 7. बेटा मिला? सम नंबर 7 आप लोगों को मिला? Let's start reading the sum. Mr. Sachdev draws the following bill for the goods sold on Mr. Nikul, who accepted the same as per the terms. Now यहाँ पर दो dates we are given with. देखो दो date हमें दी हुई है. एक है date of drawing और दूसरा है date of acceptance. दोनों पे स्टार करो, ये दोनों important date है. Date of drawing and date of acceptance. Now along with these two dates, we are also given with the amount of bills. एक बिल है 20,000 का, दूसरा है 22,500, 20,000 and then 37,500. टेन्योर अगर हम देखें बेटा, टेन्योर के कितने महीने के क्रेडिट का बिल है. So I have picked up this sum because it's a combination. It's a combination of month and days. जो हमारे प्रीवियस कंसेप्ट भी रिवाइज कर देंगे. तो पहला बिल है 3 months. अंडरलाइन दिस वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर डेट. It is 3 months after date. Second is 60 days. Again, after date. Okay. Then third, 2 months after date. And 30 days, again it is given after date. Now, but how many of you remember the theoretical point which I made you understood at the beginning of the chapter? के date of bill and date of acceptance. हमने एक concept ऐसा सीखा था, after date and after sight. ऐसा एक theoretical concept हमने सीखा था, after date and after sight. Now after date का मतलब क्या कि जिस दिन हमने बिल ड्रॉ किया, हम उसका क्रेडिट पीरियड उसी दिन से कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे. इफ द बिल इज आफ्टर डेट, तो मुझे मान लो देखो ये सब में 3 months का क्रेडिट बोले हैं, 60 डेज का क्रेडिट बोले हैं, और शब्द क्या यूज किया है? आफ्टर डेट. नाउ द वर्ड आफ्टर डेट इंडिकेट्स कि हमें जो क्रेडिट पीरियड कैलकुलेट करना है वो डेट ऑफ ड्रॉइंग से हम कैलकुलेट करेंगे. We would calculate the credit period from the date of drawings. लेकिन अगर वहां पर शब्द ऐसा दिया होता आफ्टर साइट, बेटा क्या लिखा होता? If the word would have mentioned after sight, तो क्रेडिट पीरियड हम कैलकुलेट करना शुरू करते फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. हम क्रेडिट पीरियड फाइंड आउट करना शुरू करते फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. Now better looking at you people and looking at the system with what we are learning right now, that is online system, I completely believe or I firmly believe कि तुम ये भूल जाओगे. क्योंकि जैसे ही अभी मैंने बोला कि ये थियोरेटिकल कंसेप्ट हमने पहले किया था, आधे लोग तो वहीं पर खो गए. साला किधर है? पेज टर्न कर करके देखने लगे, किधर है वो थियोरेटिकल कंसेप्ट. सो आई वुड रिक्वेस्ट आप ये नोट लिख लेंगे बिफोर वी स्टार्ट द सम. प्लीज राइट द नोट. कम ऑन एवरीबॉडी, लिखो. when date of drawing, when date of drawing and date of acceptance, when date of drawing and date of acceptance both are given in the question, both are given in the question, then
the credit period, then the credit period is to be calculated, credit period is to be calculated as under, credit period should be calculated as under, if it is mentioned, credit period, if it is mentioned credit period after date, if it is mentioned credit period after date, then credit period should be calculated, then credit period should be calculated from the date of drawing. Credit period should be calculated from the date of drawings. And if in the question it is mentioned, if in the question it is mentioned credit period after sight, if in the question it is mentioned credit period after sight, then credit period should be calculated, then credit period should be calculated from the date of acceptance. The credit period should be calculated from the date of acceptance. बेटा ये जो एक इंपॉर्टेंट नोट तो नहीं कह सकते हैं हम, ये पूरी एक स्टोरी ही लिखवा दी है मैंने, ये नोट कहाँ लिखवाई है, पूरी स्टोरी लिखवा दी है आप लोगों को। तो स्टोरी बेटा समझ में आ रही है, हमें बेटा वर्ड्स को पकड़ना है। When date of drawing and date of acceptance, ये दो डेट जब हमको दी हुई हैं, डेट ऑफ ड्राइंग एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जब ये दो डेट्स हमको दी हुई हैं, तो हमको क्या देखना है कि क्रेडिट पीरियड अगर आफ्टर डेट लिखा है, इफ दे हैव मेंशन्ड इट इज आफ्टर डेट, तो हमें क्रेडिट पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ द बिल से गिनने का। एंड अगर ऐसा लिखा है आफ्टर साइट, द डेट ऑफ द बिल अगर ऐसा लिखा हुआ है आफ्टर साइट, तो हमें क्रेडिट पीरियड कैलकुलेट करने का फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ओके, अब तुम यहां पर बेटा सम में क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, हमको क्रेडिट पीरियड बोले हैं, हमें क्रेडिट पीरियड बोले हैं ढूंढने के लिए आफ्टर डेट फॉर ऑल द बिल्स, हमें क्रेडिट पीरियड बोला है आफ्टर डेट फॉर ऑल द बिल्स। तो मुझे तुम बताओ डेट ऑफ ड्रॉइंग विच इज नंबर 1 and डेट ऑफ एक्सेप्टेंस विच इज नंबर 2, तो मैं अपना क्रेडिट पीरियड कब से गिनूंगा, 1 के 2 ऐसा फिंगर करके बताओ, 1 के 2 ऐसा फिंगर करके बताओ बेटा, 1 के 2 ऐसा फिंगर करके बताओ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आईपीएल में अंपायर की कमी नहीं होने वाली इस बार, आईपीएल में अंपायर्स की कमी नहीं होने वाली है, सबने बेटा अपनी ऐसी वाली उंगली खड़ी कर दी है, सबने। वेरी गुड। Can I say it will be from the date of drawing the bill because the word mentioned is after date. Come on, let's start making the table and let's start calculating the things. But I have already made the table. I have already made the table. I am giving you time. Come on, let's start. Give the heading. Table showing calculation of average due date. Come on, table बना लेंगे फटाफट बेटा, टेबल बना लेंगे फटाफट। Table showing calculation of average due date. बेटा आई होप इतने सारे सम्स करने के बाद, आई होप यू रिमेंबर हाउ टू मेक द टेबल। Definitely sir, I'll turn the page and I'll see the format. You don't worry. I know how to make the format. Come on.
चालू करो। But give me a thumbs up if you're done with the format. Come on, let's start. Give me a thumbs up if you have done with the format. Okay, let's begin, beta. Let's begin. Let's start. Let's start. The first bill, as I said, date of drawing and date of acceptance both given, but all the tenure is after date. तो मेरे को date of acceptance का कुछ काम नहीं है. ये सब में मुझे date of acceptance का कुछ भी काम नहीं है. तो serial number 1, date of bill 6/1/2017. Period is 3 months. Period 3 months. Amount comes to 20,000. But amount comes to 20,000. Come on, beta, message me what will be the due date. Message me what will be the due date from 6/1/2017. I have to calculate a credit period of 3 months. I have to calculate a credit period of 3 months. Beta, give me a message. What will be my due date? What will be my due date? Very good, बेटा. जो मैसेज आ रहे हैं, जो मैसेज आ रहे हैं वो काफी हद तक सही आ रहे हैं. जो मैसेज आ रहे हैं काफी हद तक सही आ रहे हैं. बहुत बढ़िया बेटा. 6/1 से अगर हम 3 मंथ्स कैलकुलेट करें तो 6 फरवरी, 6 मार्च एंड 6 अप्रैल. और 6 अप्रैल में हमें बेटा 6 अप्रैल को अपना ये क्रेडिट पीरियड खत्म होता है. 6 अप्रैल को अपना ये क्रेडिट पीरियड खत्म होता है. उसमें हम ऐड कर देंगे 3 दिन का ग्रेस. तो 9 अप्रैल 2017. बेटा 6 अप्रैल को 3 महीने एग्जैक्ट खत्म होते हैं और उसमें फिर 3 दिन का ग्रेस हम ऐड करेंगे. सो 9 अप्रैल 2017 will become my due date. 9 April 2017 will become my due date. Any doubt? 9 April 2017 will become my due date. Badhiya. But let's go on to the second one. Let's go on to the second one. 15th February 2017. The credit period is 60 days. The credit period is 60 days. So बेटा यहाँ पर 15 फरवरी 2017 में हमें प्लस करने हैं 60 डेज. 15 फरवरी 2017 में हमें प्लस करने हैं 60 डेज. बट आई एम वेटिंग 60 डेज. 60 डेज. मैसेज 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 मैसेज. बहुत बढ़िया. मैसेज आने लगे हैं, आने लगे हैं. और सबके एक ही जैसे आंसर आ रहे हैं यार. आज आज क्या हो गया है? सबके एक ही जैसे कैसे आंसर आने लगे हैं यार आज? इज देयर अ स्पेशल डे टुडे? बट 60 डेज अगर हमें ऐड करने हैं तो फरवरी के देखो 15 दिन तो निकल गए.
फरवरी के 15 दिन निकल गए, 28 का महीना है बेटा, इट्स नॉट अ लीप ईयर, 28 का महीना है, सो फरवरी के 13 डेज, देन मार्च के 31 डेज एंड अप्रैल का अगर हम देखें बेटा, अगर मुझे 60 डेज ऐड करने हैं, सो 13 प्लस अगर हम 31 करें, 13 एंड प्लस अगर हम 31 करें तो 44 डेज हो जाते हैं, 44 डेज, मतलब अप्रैल के हमें 16 डेज लेने पड़ेंगे, अप्रैल के हमें 16 डेज लेने पड़ेंगे, तब जाके हमारे 60 डेज कंप्लीट होंगे। उसमें मुझे ऐड करने हैं 3 डेज ऑफ ग्रेस, so 19 April is my final answer, but 19 April 2017, that's my final answer, 19 April. So 1904 2017, 19 April will be my due date, and the amount what we are getting is 22,500. Amount what we are getting is 22,500. Then next 22 February 2017 को हमने बिल बनाया, वापस बिल का पीरियड है 2 मंथ्स के, अपना बिल का जो पीरियड है दैट्स 2 मंथ्स, and the amount is 20,000. The amount is 20,000. Are you getting it? तो बेटा इसका जरा ड्यू डेट बताओ, इसका जरा ड्यू डेट बताएंगे। 22 फरवरी से हमें 2 मंथ्स कैलकुलेट करने हैं, 22 फरवरी से हमें कैलकुलेट करने हैं हमारे 2 मंथ्स। सो 22 फरवरी से अगर हम 2 मंथ्स कैलकुलेट करेंगे तो 22 अप्रैल को हमारे 2 मंथ्स खत्म होंगे, और उसमें हमें ऐड करने हैं 3 दिन का ग्रेस, तो 25 April 2017 will be my due date, 25th of April. क्या बोल रहे हो बेटा, 25th of April ही आएगा ना? हाँ, बच्चों ने मैसेज भी वही किया है, बहुत बढ़िया। 25th of April 2017 will be my due date. Okay. Then next, 4th, बेटा 4th 14/3 को हमने बिल बनाया है, 14/3/2017, बेटा क्रेडिट है 30 डेज का, क्रेडिट है मेरा 30 डेज का, तो जरा फटाफट मैसेज ड्यू डेट का, ड्यू डेट का मैसेज करेंगे। चलो 14/3, 14/3/2017 से हमें प्लस करने हैं 30 डेज, 14/3/2017 से हमें प्लस करने हैं 30 डेज, बराबर है। अब अगर हम 13 डेज ऐड करें तो मार्च का मंथ अगर हम देखें तो उसमें तो 14 डेज निकल गए, 31 डेज का महीना रहता है, तो 17 दिन मार्च के, 17 दिन, और अप्रैल के 13 दिन, तो अपने 30 डेज हो जाएंगे। मार्च के 17 और अप्रैल के 13, तो 30 डेज वहां हो जाएंगे, उसमें हम प्लस करेंगे 3 डेज का ग्रेस, उसमें हम प्लस करेंगे 3 डेज का ग्रेस, तो 16th April will be my due date, 16th April. Yes Aksha, any doubt? यस सर। सर थर्ड क्वेश्चन में है ना, मैंने फरवरी के 6 डेज प्लस मार्च के 31 डेज और अप्रैल के 23 डेज और प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो मेरा आंसर 26 अप्रैल 17 आया। किसमें बेटा, किसमें? थर्ड वन में सर। थर्ड वन में, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, 2 मंथ्स बोले हैं तो? सर
एक ही टाइप का वर्किंग करना सीखा है ना, तो फिर 26 आ रहा है उसमें मेरा। नहीं आ सकता ना, वो ये गलत है, इसीलिए तो गलत है। डेज और मंथ्स में तुम कंफ्यूज हो जा रहे हो। अगर डेज दिए हैं तो डेज कैलकुलेट करो, मंथ्स है तो वो तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है मंथ्स का। तो 22 से 2 महीने गिनेंगे तो 22 3, 22 4, सीधे ऐसे 2 मंथ्स खत्म कर दो ना तुम। डेज मत गिनो इसमें, मंथ्स जब दिए तब उसमें डेट्स मत गिनो, नहीं तो गलत ही आंसर आएंगे आपके। ओके सर। मंथ्स बोला है तो गो फॉर मंथ्स, डेज बोले हैं तो गो फॉर डेज। सो यहाँ पर April 13 में 3 दिन का ग्रेस हम ऐड करेंगे तो 16th April। Our due date will be 16th of April 2017। सो यहाँ पर ड्यू डेट हम लिख देंगे 16th of April 2017। एंड बेटा अमाउंट कितना है जरा चेक करो, 37,500। द अमाउंट कम्स टू 37,500। बेटा यहां तक इतना सबने कर लिया, यहां तक सबने कर लिया। बेटा सम का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था वो समझ में आ रहा है? डेट आफ्टर बिल्स का टेन्योर, आफ्टर डेट और आफ्टर साइड, ये दो चीजें उन्होंने यूज करी थी। आफ्टर डेट एंड आफ्टर साइड, ये दो चीजें उन्होंने यूज करी थी। सो अकॉर्डिंगली बेटा, अकॉर्डिंगली हमने उनका क्रेडिट पीरियड के हिसाब से क्रेडिट ढूंढा। अब ये चारों ड्यू डेट्स में से मुझे तुम बताओ कौन सी हमें बेस डेट लेनी है। कम ऑन, message me which base date we have to consider, base date। बहुत बढ़िया। can I say the earliest one? The earliest one is to be considered as our base date, तो 9/4 the most earliest one, 9/4/2017। तो वो हम लिख देंगे कि हमारी बेस डेट 9/4/2017 है, अपनी बेस डेट है 9/4/2017। बेटा कैलकुलेट करना शुरू करो, चलो कैलकुलेट करना शुरू करो, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट। चलो पहला वाला मैं करके दे दे रहा हूं 0, पहला वाला मैं करके तुमको दे दे रहा हूं 0। देन 9/4 से 19/4 तक चलो यार, ये एकदम इजी है। 9/4 से 19/4, वेरी गुड, इट वुड बी 10 डेज। 9/4 से 19/4 it would be 10 days। देन 9/4 से 25/4 तक चलो, 9/4 से 25/4, बेटा 9/4 से 25/4, that's also correct, 16 days। 9 अप्रैल से 25 अप्रैल तक जाएंगे, that will be 16 days। अरे बेटा 9 अप्रैल से लेके 16 अप्रैल तक चलो, बेटा 9 अप्रैल से 16 अप्रैल तक चलो, that's also amazing, 7, that's the right answer, 7। Okay, बेटा now two things I want from your side, the total of amount। पहले प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लो, चलो फटाफट कैलकुलेट द प्रोडक्ट। एवरीबॉडी टेक अप योर कैलकुलेटर, प्रोडक्ट कैलकुलेट करो।
बेटा आर द प्रोडक्ट कैलकुलेटेड? प्रोडक्ट क्या आपने कैलकुलेट कर दिया एवरीबॉडी? बेटा द फर्स्ट वन will definitely will be 0, then it will be 225,000,000, 2,25,000, then 20,000 into 16, but that comes to 3,20,000, and then 37,500 into 7, 262,500, 262,500. ओके, अब बेटा अमाउंट का टोटल 20,000 प्लस 22,500 प्लस 20,000 plus 37,500, that comes to 1 lakh. But the total of amount comes to 1 lakh. The product 2,25,000 plus 3,20,000 plus 262,500, that comes to 807,500. बेटा ऐसा आ रहा है मेरा टोटल, आर यू गेटिंग इट? ऐसा टोटल मेरा आ रहा है, आर यू गेटिंग इट? And if I have made any mistake, just let me know. If I have made any calculation mistake, then let me know. Okay, are you getting these totals? 8,07,500 is the total for your product, and your total of amount comes to 1 lakh. Your total for amount comes to 1 lakh. Everybody getting that? But everybody getting that? That's amazing. That's amazing. Give me the average period. Come on. Give me the average period. Come on, फटाफट. एवरेज पीरियड क्या आएगा? अपना प्रोडक्ट कितना आया? 8,07,500. उसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, उसे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 1 लाख से. सो आई एम गेटिंग 8.07 डेज. ऐसा आ रहा है, जरा चेक करो. 8.07 days. Are you getting it? Now 8.07 days को हम राउंड ऑफ करेंगे, it is equal to 8 days only. बेटा 8.07 days को हम राउंड ऑफ कर देंगे, it will come to 8 days only. Are you getting it? And now we can calculate our average due date. अपना बेटा बेस डेट कौन सा था? बेस डेट 9/4/2017 plus 8 days. 9/4/2017, उसमें हमें ऐड कर देना है 8 days. But I'm waiting for your final answer to come. 9/4 में 8 days कैलकुलेट करो बेटा. I'm waiting for my final answers to come. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैसेज आ रहे हैं बेटा. 9 अप्रैल को अगर हम 8 days ऐड करें तो my final answer of average due date is, my final answer for the average due date is बेटा मेरा फाइनल आंसर एवरेज ड्यू डेट का 9/4 में अगर 8 days हम ऐड करेंगे तो 17/4/2017. that's my final answer. 17/4/2017, that's my final answer of average due date. 17/4. बट आपके आ रहे हैं 17/4. आर यू गेटिंग दैट आंसर? And why the sum was important? Why the sum was important and I need to do that? वो समझ में आया? वो डेट वाला पॉइंट था. आफ्टर डेट एंड आफ्टर साइट. नेक्स्ट वीक जब मैं इस चैप्टर का टेस्ट लूंगा तब ये वाले सम ऐसे डेफिनेटली पूछने वाला हूं मैं. नेक्स्ट वीक आई एम प्लानिंग टू कीप द टेस्ट, और उसमें मैं डेफिनेटली ये पूछने वाला हूं आफ्टर डेट एंड आफ्टर साइट. वो दोनों चीजें मैं इंक्लूड कर दूंगा इसमें.
आर यू गेटिंग इट? अब बेटा फटाफट, जरा फटाफट मुझे सम नंबर 12 करके दे दो फटाफट, यूनिवर्सिटी पेपर सेट का ही सम नंबर 12 स्टार्ट कर दो। स्टार्ट सम नंबर 12 ऑफ यूनिवर्सिटी पेपर सेट। इट्स अ वेरी इजी सम। मैं नहीं करने वाला हूं, कुछ भी हिंट भी नहीं दूंगा मैं। फटाफट स्टार्ट करो, चलो फटाफट स्टार्ट करो।